has cracked his SSB for SSC Tech from 14 SSB at Prayagraj. So this was your which attempt? So this was not his first attempt. He has worked for quite some time, and this was his 5th attempt. But nevertheless, whichever attempt is the best attempt, the super attempt, which you make it, in which you realize what mistakes we have done and how we are going to amend that. And once you present yourself there, if you have done it well, SSB is always there to welcome you and to help you succeed. Okay. So with that, we'll first hand over the AMAS tie and the cup, and I want to show you the AMAS cup, which is quite coveted and will be of big use to you in the academy. This is the cup. This is not a ceramic cup which will break, and the people at the back want to say it. This is a pure steel cup, and which has got written AMAS star, which is not written, it is etched, so it will not go away. Okay, so one of the best quality stuff which I found, so I want to gift it to the students, and also this is going to become a recognition symbol in the academies. When you go there, the AMAS students will be using this cup for having the tea which you get at the academy. And first I will present this tie. Come, Prashant. Heartiest congratulations. So today we are going to talk to Prashant and ask his journey, how he had his journey of preparation for SSB, because all of you are aspirants, you are preparing. So it's very important that you listen to his tips and points, whatever he did, and follow them in our preparation. Whatever is suitable to us, we can always learn from the success stories of people. May not be 100%, but maybe some 10%, 20%, that will also make a lot of difference. So while Prashant is talking to you, you can take some points down. If you find that thing is useful to you, you can note it down so that you don't forget about it. Yeah. So Prashant, first I'd like to ask you, how was your last 1 year? I think it was more than a year you have been preparing and aspiring for SSB. So what all activities did you do, and what was this attempt different from the previous attempts? First of all, good evening to everyone. Good evening, sir. So, I have started my SSB journey from last year, May onwards. Initially, I was not aware about the AMAS time, so I joined. And by God, अफसाना मैम की क्लासेस काफ़ी मिस करी थी OIR की, तो वहाँ सबसे पहले मुझे OIR ही मिला और डे 1 ही मैंने कुछ नहीं किया, पापड़ खा के वापस आ गया. ठीक है, मैं I got screened out from Jalandhar in May, 5th May. तो वहाँ से आने के बाद सबसे पहले तो मैंने वो बुक खत्म की. सबके पास होगी एक ऑरेंज कलर की OIR की. सबसे पहले मैंने वो बुक 2 बार खत्म की थी. उसके बाद आई टुक AMAS 62. यहाँ पे आने के बाद खुद को फिर से रीशेड्यूल करना, सारी चीज़ें प्रिपरेशन. अब मैं बताता हूँ थोड़ा SSB की जर्नी के बारे में, इस बार जो हमारे साथ हुआ या फिर जो भी चीज़ें मैंने फेस की. स्टार्टिंग फ्रॉम PPDP, एज दिस वॉज माई लास्ट अटेम्प्ट, आई वॉज इन अ ग्रेट प्रेशर. मल्टीपल थॉट्स वर गोइंग ऑन इन माई माइंड कि क्या होगा. Although I have a good backup, but still I wanted to like get in anyhow. तो मेरी स्टोरी जो आई थी उसमें एक प्रोफेसर थे जो गर्ल्स क्लास को कुछ पढ़ा रहे थे ऑन डिजिटल को, और उसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली ये थी कि हर डेस्क पे डिजिटल स्क्रीन, यू कैन से टैबलेट, राइट. तो मैंने उस पर स्टोरी स्टार्ट की विमेन एम्पावरमेंट पे, और वो ख़त्म करते करते वो कुछ और ही हो गई, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में था. वो एक मल्टीपल थॉट्स चल रहे थे और जो प्रोडक्टिविटी आ सकती थी वो आई नहीं. बट उसके बाद जो 15 मिनट का गैप मिला मुझे, मैंने उस को फॉर्मेशन में डाला, प्रॉपर तरीके से नरेशन उसकी प्रिपेयर करी 15 मिनट्स की गैप में, और मैंने वहाँ सबसे ज़्यादा आई वॉज लाउड था पूरे हॉल में. मैं सबसे ज़्यादा लाउड था. मैंने अच्छा नरेशन दिया, ग्रुप डिस्कशन में अच्छा पार्टिसिपेट किया. डोमिनेट नहीं करना है किसी को, पार्टिसिपेशन इज डिफरेंट. जब आपको लगता है कि यू हैव अ चांस टू स्पीक आउट, गो अहेड. किसी को काटना नहीं है, राइट. और सबको सपोर्ट करना है. अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी इतनी वर्कआउट नहीं कर पा रही है, वैसे मुझे लगता नहीं AMAS से जाओगे तो आपकी स्टोरी वर्कआउट नहीं करेगी. आई एम वेरी ऑनेस्ट, करेगी. ठीक है, अब वो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन सीखा होगा सबने. इस बार मैंने सीखा था, लास्ट टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया. तो इस बार जब मैंने सीखा तो मैंने वहाँ पे वो यूज़ किया.
लेक्चरेट में भी, वहाँ भी हर डिस्कशन में मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन यूज किया। तो वहाँ पे मुझे उन लोगों को टेक ओवर करना ईजी हो गया। लोगों ने मेरी बात सुनी। हमारा ग्रुप था अराउंड 18 का पीपीटीटी में, और वहाँ से तकरीबन भी 9 लोगों ने मेरी स्टोरी को सपोर्ट कर दिया, राइट। तो मेरा पीपीटीटी अच्छा गया, मैं स्क्रीन इन हो गया। अब पीपीटीटी स्क्रीन इन होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन वर्क सब सारी चीज़ें वाइंड अप हुई हैं 6:30 और 7 o'clock इन द इवनिंग, राइट। उसके बाद सबसे पहला जो काम जो लोग करते हैं, जो भी फ्रेशर्स हैं यार, आप लोग सबसे पहले एक काम करोगे, आप वहाँ की वाइब एंजॉय करोगे, मत करना यार, है ना। जाके अपना साइक का डॉकेट खोल लेना, जो भी आपके पास बुक्स हैं वो देख लेना, वो ज़रूरी है। या तो सोने के बाद खोल लेना। मैं करता था सर, मैं 9 बजे सोता था और मैं 1 बजे उठ जाता था। जब सब लोग हल्ला उल्लड़ कर रहे थे तो मैं सो जाता था, 9 से मैं सो जाता था, मैं 1 बजे उठ जाता था सबके जाने का। तो 1 से सुबह स्ट्रेट 4 बजे तक पढ़ना, उसके बाद एग्जाम के लिए चीज़ें थी एट एसएसबी एट तो 4 घंटे सोने की आदत तो यहाँ पड़ी गई थी सर, पढ़ी थी 4 में काम चल जाएगा बिल्कुल आराम से सर। 3 में भी चल रहा था। हमारा दोनों में चल रहा है। इट्स अ गुड थिंग ना। यस सर। सो नेक्स्ट डे साइक अच्छा गया। 12 स्टोरीज थी, जिसमें से 2 कॉमन आई थी जो हमने प्रैक्टिस की हुई थी, और 10 सेम लाइंस में थी। तो ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा होपलेस नहीं होना वहाँ पे अगर इमेज डिफरेंट आ जाए, बिकॉज हम लोग यहाँ पे माइंड सेट कर लेते हैं कि अरे 7 उसकी 8 सेम आई थी, तो हम वहाँ जाके वही करते हैं कि सेम आएंगी। वो नहीं करना, वो माइंड सेट लेके मत जाना। आपको जो चीज़ें बताई गई हैं, सर ने बताई हैं, संदीप सर ने जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, आपको एग्जैक्टली वो फॉलो करना है। बस इमेज का काम कुछ नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना, आपकी स्टोरी अपने आप अलाइनमेंट में आ जाएगी। 12 में से सिर्फ 2 स्टोरीज सेम आई थी, उसके बाद 10 हमने की थी। वेट का ये दिस इज शॉकिंग फॉर यू एज वेल, वॉल्यूम 2 सर का एसएसबी 100% वेट सेम 100%। मेरे पास नहीं था, वो लकीली कोई मेरा रूममेट था, वो लेके आया हुआ था, और वो देख रहा था। मैं कहता यार ये मैंने भी पढ़नी थी, मेरा एक ही वॉल्यूम खत्म हुआ था, तो मैंने उसको देखा और मैंने सिर्फ वेट ही देखना शुरू कर दिया उसमें से। मैं रीड आउट करता चला गया, और सुबह मैंने देखा तो मैंने यार ये सारी चीज़ें मैंने करी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बुक भी रेफर कर लो। प्रयागराज जो जा रहा है स्पेशली, मैंने बाकी जो बेस्ट हैं 32, 11, 18, 19, उनके भी तकरीबन 50, 60, 70% हैं उस बुक में, ईजीली हैं। साइक अच्छा गया। उसके बाद वापस सेम रूटीन, वापस आना, लंच वंच करके अपना सो जाना, ठीक है, रात को 9 बजे सो जाना, फिर 1 बजे उठना, फिर अपना वही नेक्स्ट डे की तैयारी। जीटीयू में मैंने यहाँ पे भी इतनी बार नहीं लिखा था, मैंने 10-10 पेज लिखे हैं वहाँ पे एसएसबी में यार। मैंने यहाँ 5 पेज नहीं लिखे थे। मैंने वहाँ अपना जीटीयू से पहले मैंने 10 पेज लिखे हैं पूरे, 11 रूल्स और 5 गोल्डन बार। मगर ये वहाँ पे कुछ मिस नहीं होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे जब आप अंडर प्रेशर रहते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता भी हैं तो मिस कर जाओ। तो मैं वो चाहता नहीं था एनी केस। नेक्स्ट डे जीटीयू स्टार्ट होता है। पहला आता है लेक्चरेट टॉपिक्स। लेक्चरेट की हम बात करें तो सर टॉपिक्स आए थे ब्लू इकोनॉमी, आपको बताया हुआ है, हमें बताया हुआ था 51 में, तो आपको तो ऑब्वियसली बताया हुआ है। ब्लू इकोनॉमी, जेंडर इक्वालिटी, आफ्सपा, और दैट वन इज द G20। सो ये 4 मेजर टॉपिक। उसके बाद हमारा ग्रुप डिस्कशन चला। ग्रुप डिस्कशन में 3 मेजर जो टॉपिक्स चल रहे हैं आजकल, पॉल्यूशन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का वही क्राइम इन पॉलिटिक्स, पॉल्यूशन का उसका क्या हम ऑब्जेक्टिव या स्टेप ले सकते हैं पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, और इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जा सकता है। तो पहला जब पॉल्यूशन था तो आई केम फ्रॉम आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड, तो मैंने अभी रिसेंटली हमने यशोभूमि बनाया और हमने ट्रेड ITPO बनाया, तो मैंने उसके बारे में बहुत अच्छा खासा पढ़ा हुआ था, बहुत इन डिटेल। मुझे एक प्लांट्स का भी पता था कि कहाँ कौन सा लगाया हुआ है। तो उसमें एक IGBC रेटिंग होती है, दैट्स आई वुड सजेस्ट कि अगर पॉल्यूशन आता तो एक बार ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को देख लेना, वो बहुत काम आएगा। क्योंकि मुझे पता था ग्रीन बिल्डिंग के बारे में, मुझे रेटिंग पता थी, ग्रीन लीड मुझे सब पता था, तो वो टॉपिक ही मेरा हो गया था। मैं क्या कर रहा था, मैं सिर्फ एक लीड छोड़ रहा था एग्जाम्पल देके विद एग्जाम्पल। कंसीडर दिस, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, टेक वाले मोस्टली स्पेशली मैं आप लोगों को कहूंगा कि कोशिश करना अपनी पर्सनल लाइफ से एग्जांपल रिलेट करके दो, वो बहुत ज्यादा अपीलिंग हो जाता है वहाँ पे, लोग सुनते हैं। मैंने वही किया था एग्जैक्टली, मैंने एक टेक्निकल वर्ड छोड़ा, उसके बाद एक एग्जांपल, टेक्निकल वर्ड एग्जांपल। उसमें क्या हुआ था मेरे साथ, फर्स्ट टॉपिक में तो ये हुआ था, मैंने कोई बात कह दी, एक स्टेटमेंट मैंने दे दी, उसमें बाकी 3 लड़ रहे हैं,
तो मैंने यही करा था, मैंने 4 पॉइंट दिए। हाँ सर, यस सर, जीडी इन माय फर्स्ट जीडी। तो वहां पे 4 यही चला है फर्स्ट जीडी में। तो यही हुआ, लिटरली मैंने एक स्टेटमेंट दी थी, उसमें बाकी 3 बहस कर रहे हैं, मैं आराम से बैठ के देख रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेटमेंट तैयार कर रहा हूँ, फिर वो एग्जाम्पल के साथ डाल रहा हूँ। तो पूरा फर्स्ट जीडी यही था। दूसरा था इकोनॉमी का था, इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। आप सबको भी पता है, मोस्टली स्टडी और एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, यही चीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने नितिन गडकरी जी का वर्क मैंने पूरा पढ़ा हुआ था। मेरे को एक हाईवे उनके पता थे, जो हो चुके हैं, जो आ रहे हैं, वो टनल्स जो काम कर चुके हैं, जो अभी एक कर रहे हैं सिसुला पास पे। तो वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से कर रखी और मैं जाने से पहले एक बार रीड आउट कर चुका था। लेक्चरेट था, मैंने चूज किया जेंडर इक्वलिटी। वहाँ पे उसका रीज़न ये था, मुझे ब्लू इकोनॉमी भी पता था, बट मैंने उसका रिस्क नहीं लिया, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी में मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा बातें नहीं बना सकता था और मुझे थोड़ा सा वहाँ पे समझ रहे हो शो ऑफ करना था, थोड़ा सा दिखाना था, पब्लिक स्पीकिंग वाली स्किल्स। तो मैंने जेंडर इक्वलिटी लिया और मैंने स्टार्ट किया ये स्टेटमेंट, मैंने ये कोट वहाँ पे खुद ही रेडी किया कि ही और शी, व्हाट डू यू थिंक इट मैटर्स, आई डोंट थिंक सो। सो मैंने ऐसे स्टार्ट किया था। तो वो एकदम जीडीओ सब उबासी ले रहे थे, सबकी नींद खुल गई, क्या कह रहा है, तो ऐसे करके मतलब समझ रहे हो ना, आपको अट्रैक्ट करना है। वो होगा ऐसा कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो लोग रटे रटाई बोल रहे होंगे, आपने वो नहीं करोगे तो अच्छा है, कर दोगे तो भी ठीक है, अपने अपनी तरफ से इनपुट डालोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने वही किया था वहाँ पे। लेक्चर मेरा अच्छा था, लाउड, वॉइस मॉड्यूलेशन, सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से इनकलकेट की थी। उसके बाद चलते हैं, लेक्चरेट हो गया, जीडी हो गया, फिर उसके बाद हमारा पहले दिन हुआ था आउटडोर टास्क, पीजीटी एचजीटी। सर पीजीडी एचजीटी वो अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। पीजीडी एचजीटी में मैंने कुछ नहीं करना था। लास्ट टाइम मैंने सर से पूछा था, मैं कहा सर मैं पीछे रह जाता हूँ, मैं छोटा सा हूँ, तो मतलब मेरे साथ थी इशू, और इस बैच में भी यही था, सब मेरे से टॉल ही थे। तो मेरा ऐसा था, मैं कहा यार इनसे आगे निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। तो मैंने लास्ट टाइम सर से पूछा था, तो सर ने कहा तो कुछ नहीं करना, रस्सी हाथ में रखनी। तो सबसे पहले जाके रस्सी पकड़ लिया। मैं कहा ठीक है, अब बुलाना मुझे, बाद में आ जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। तो रस्सी का होगा नहीं, अच्छा है। हाँ, तो मैंने सिर्फ रोप अपने हाथ में रखी हुई थी और वो फट्टा बल्ली लगाने में लड़ रहे हैं। तो देख रहा हूँ 2-3 मिनट बहस चल रही है, उसके बाद मैं जेंटलमैन, आई हैव एन आइडिया। बस एक आइडिया शुरू में दिया मैंने, एक लास्ट में दिया। मैंने बहस करी शुरू में, मैंने बस यही कहा लेट्स यस जेंटलमैन, यू हैव अ गुड आइडिया, वी कैन इंप्लीमेंट दिस, लेट्स ट्राई दिस, बस यही करता रहा। मुझे पता थे आइडियाज और अच्छे अच्छे मुझे पता थे, बट मैंने वो कोशिश भी नहीं की। मैंने कहा था मेरा काम हो गया, जीटीओ की नज़र में आ गया, बस ठीक, उससे ज़्यादा मैं करूँगा नहीं, वो थोड़ा सा डोमिनेट वाला हो जाता है। तो मैंने 2 आइडियाज दिए थे, पीजीटी में भी एचजीटी में। उसके बाद जीटीओ सर ने मुझे नोटिस कर लिया था कि हाँ ठीक है, इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट डे कमांड टास्क में उन्होंने क्या किया, कमांड टास्क में एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा सर मेरे लिए ला दिया। उसमें कुछ नहीं था, कोई ऑब्स्टेकल नहीं था, कुछ नहीं था, पत्थर थे, उसी को पेंट किया हुआ था, और मुझे दी 2 रस्सी 6-6 फुट की, एक 6 फुट की बल्ली, एक 6 फुट का प्लैंक, और मैंने फर्स्ट स्टेज क्रॉस की। मैं कंफ्यूज, उसके बाद यार ये रस्सियों का क्या होगा, मैं कंफ्यूज। वो उनका मोटिव यही था कि इसको थोड़ा सा करना है। मैं कंफ्यूज हो गया, मगर यार इसका क्या होगा रस्सी का। फिर थोड़ा सा 2-3 मिनट इधर उधर करने के बाद मेरे स्ट्राइक किया, मगर भाई ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मगर ये कुछ नहीं है, रोप वो खाली पकड़ने के लिए, वो नॉर्मल प्लैंक और बल्ली से ही हो गया था। पाइथागोरस थ्योरम है। यस सर, वही था, पाइथागोरस था। हाँ पाइथागोरस। तो उसमें वही किया, उसके बाद वो हो गया था। तो कमांड टास्क अच्छा गया मेरा। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में मेरे साथ थोड़ा सा हुआ था, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल मेरे हो पाए थे सिर्फ 7, और साइक में एक चीज और, मेरी एसआरटी थी सिर्फ 26, बट द डिटेल्ड वन, क्वालिटी अच्छा था। 3 लाइन पर एसआरटी, और कोई चीज मैंने नहीं छोड़ी थी, कोई भी मेजर माइनर डिटेल मैंने सब डाला हुआ था उसमें। और मेरी कोशिश थी 35 करने की, बट मेरा 26 ही हो पाया, तो ठीक है। और वो मेरा एक क्वेश्चन मार्क हो गया था मेरे रिकमेंडेशन पे वहाँ से, जब 26 साइक हुआ, और इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में मैं सिर्फ 7 कर पाया। रीजन भी मैं सर वो टार्जन स्विंग कर रहा था, तो मैं उसको 2 बार गिरा, तो आई वाज ट्राइंग, बट पैर में लगी थी, बट स्टिल हो जाता है। आपने जंप तो किया ना? हाँ मैंने सर जंप किया, मैंने दोनों बार किया था, बट उसके बाद मेरे 2 और छोटे छोटे मिस हो गए थे, बैलेंसिंग भी और डबल जंप। बाकी सारे मैंने बहुत अच्छे से किए, और बस यही था कमांड टास्क में। फिर आती है इंटरव्यू की बारी। मैं वेट कर रहा था, मैं टेक्निकली इतना प्रिपेयर था, बिकॉज मैंने तकरीबन इट्स बीन मोर देन 6 years इन माय बिजनेस, और कंस्ट्रक्शन का ही बिजनेस है मेरा। तो आई वाज वेटिंग कि मुझसे कुछ मेरे टेक्निकल कोर में आगे पूछे प्लीज, आई वाज वेटिंग फॉर इट। वो मेरे टेक्निकल कोर में ही नहीं आया, वो सिर्फ CIQ तक ही रह गए, और CIQ तो EMAS वाले तो भैया एक्सपर्टीज है उनकी, तो अगर ऐसा भी होता है कुछ SSBs में, अगर आपने बता दिया कि आप EMAS से, तो वो CIQ ही नहीं पूछते,
ये होता है बहुत, हमारे दोस्तों के साथ हुआ है। आपने वहाँ पूछा, कहाँ सर से मुझसे कोचिंग पूछा ली? था, कहाँ से कोचिंग सर ली? जीटीओ सर ने पूछा था, तो मैंने कह दिया ऑन योर कॉल। यही मास, यस, ग्रेटर नॉइडा, यस, योर ऑफिस इज आल्सो देयर, यस। तो इंटरव्यू में मेरे से So don't hide. CIQ, Don't hide. हाँ, पर छुपाना मत यार। Yesterday, this one incident has happened. I will tell the class. One of those candidates, he denied, I have not taken coaching. Right? इंस्टेंटली एक्सेप्टेड। उसका मेजर रीजन ये है कि अगर आप बताते हो तो इट्स अ गुड थिंग। आप कम से कम उन लोगों की तरह तो नहीं मुंह उठा के जा रहे, एग्जाम देने जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है प्रिपरेशन तो करोगे, और ऐसा करने के लिए गाइडेंस इंपॉर्टेंट है आजकल। जिनका बिना गाइडेंस के, तो मैंने उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने एक्सेप्ट किया था उस चीज़ को। इंटरव्यू में मेरा CIQ पूछा, सारी चीज़ें पूछी, सब ठीक था। रात को मैंने 5-5 न्यूज़ एक्स्ट्रा तैयार कर ली थी। मैं कैफे जाता था शाम को 6 से 7:30, मैं इमास की न्यूज़ फॉलो कर रहा था। और प्लीज़ न्यूज़ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, और अफसाना मैम जैसे बताती हैं ना प्रोबिंग, वैसे कर लीजिएगा। अभी आप थोड़ा सा बोरियत में उसको टाल देंगे, बाद में वो आपको टाल देगा वहाँ जाके। तो ये है। तो न्यूज़ वगैरह हो गई थी, फिर उसके बाद उन्होंने 1-2 चीज़ें मुझसे पूछी थी, जैसे मेरे रिलेशंस के बारे में, अबाउट मेरे रिलेशन कैसे हैं मेरे फादर के साथ, मेरी सिस्टर के साथ, मेरी मदर के साथ। तो एक वो भी आप प्रिपेयर कर लेना। तो हमने वो सारी चीज़ें यहाँ पे इमास में कर ली। उसके बाद नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस में मुझसे पूछी गई, मेरी कॉन्फ्रेंस चली 15 मिनट, और उससे पहले वेटिंग थी तकरीबन भी 18 मिनट की, व्हेन आई वाज सिटिंग आउटसाइड। तो मेरे से कॉन्फ्रेंस में मेरा पूरा टेक्निकल कोर जिसको कहते हैं निचोड़ दिया गया, वो हुआ। मैंने जैसे ही स्टेप इन किया कॉन्फ्रेंस में, सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि हाउ वाज योर जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू इलाहाबाद, एक्सप्लेन। वो पूरी जर्नी बताई। उसके बाद हाउ मच अटेम्प्ट यू हैव गिवन इन योर SSBs, ये वो। तो 5 अटेम्प्ट की पूरी जर्नी उन्होंने पूछी। और मेरे साथ एक अच्छी चीज़ ये थी कि मेरे दोस्त बहुत बने फ्रॉम इमास 51। जब मैं इमास 51 बैच का भी नहीं था, तब भी इमास के मेरे 2 फ्रेंड थे सर, शुभम मैरी एंड आदित्य भदौरिया। यस सर। तो उन्होंने सबका पूछा, सबकी क्वालिटीज पूछी। यस सर। अब आदित्य तो हो गया, कुछ नहीं। शुभम तो पास हो गया। शुभम 9 दिसंबर। उसने टैक्सी स्विच कर लिया था हाँ, TGC। he went to TGC. सो वो चीज़ उन्होंने पूछी। फिर स्टार्ट किया उन्होंने प्रोबिंग SRTs में, बिकॉज SRT ऑब्वियस था, कम थी मेरी। कब किया था ना आपने? हाँ, तो SRT मुझसे एक तो पहले नॉर्मल से पूछी, वो स्नेक वाली, बाथरूम में यू आर यूजिंग योर वॉशरूम और सडनली स्नेक आ जाता है तो आप क्या करोगे। तो मैंने कहा मतलब बकेट में पानी भर के मैं उसको क्लोज कर दूँगा। फिर उसके बाद उन्होंने एक मेरा कंपटीशन था, नासा कंपटीशन होता है आर्किटेक्चर में, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर इज द फुल फॉर्म। अब वो नासा सुन के वो कंफ्यूज हो गए कि नासा USA। तो 5 मिनट तो उनको समझने में लगा नासा कुछ और अलग है, तो मैंने उनको समझाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने सिचुएशन दी कि आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है कॉम्पिटिशन में और SPA कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, पर SPA कॉलेज वाले आपके साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि SPA के ही स्टूडेंट्स जीतेंगे। तो वो प्रोबिंग ऐसी थी मेरी, कम से कम भी 7 से 8 मिनट चली, उसी पे प्रोबिंग। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कहा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसल्ट अवर डायरेक्टर सर को हम इन्फॉर्म करेंगे पहले तो, फिर डायरेक्टर सर जो भी एक्शन लेंगे वो लीगल वे में होगा, जैसे भी वो चाहें। तो फिर उन्होंने कहा, लिटरली ऐसे ही कहा, उन्होंने कहा नहीं, डायरेक्टर ने कह दिया कुछ नहीं हो सकता, जाओ घर बैठो। तो आई वाज लाइक कि ओके अब क्या करोगे। फिर मैंने कहा मतलब सर फिर आई विल कम बैक टू माय टीम, I'll discuss the issue and also the source from where we got to know about this thing. We will confirm the source, then I'll go to confront the jury. क्या confront the jury को confront कर लोगे students हो गए, मगर सर एटलीस्ट वी कैन बेसिकली हम अपना मतलब राइट जो है हमारा, उसके हिसाब से हम अकॉर्डिंगली बोल सकते हैं। हमारा राइट है, अगर हमें लगता है पार्शियलिटी हुई है किसी भी कॉम्पिटिशन में, तो वी हैव दैट राइट कि हम जाके बोल सकते हैं कि हमें थोड़ा गड़बड़ लगा है। तो उन्होंने कहा फिर क्या करोगे। फिर मैंने कहा मगर सर 2-3 चीज़ें हो सकती है वहाँ पे, 2 तरीके हैं। तो उन्होंने कहा दोनों तरीके बताओ। मगर पहला ये डायरेक्टर सर की बात मान के मैं घर आ जाऊँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं उनसे बात करूँ, उनको बोलूँ कि एक इंस्टेंट कॉम्पिटिशन, क्विज कॉम्पिटिशन अगर उन्होंने मॉडल वो बनाया है, सर वो एक्चुअली ब्रिज मॉडल था जो हमने बनाया था, सस्पेंशन ब्रिज मॉडल, तो उसी पे था। तो वो मॉडल अगर उन्होंने बनाया तो उसको डिटेल्स भी पता होंगे बनाया कैसे, थ्योरेटिकल पार्ट किया होगा, तो हम उस पर कर सकते हैं। हमारी तरफ से जो भी कोई आ जाएगी तो वो क्वेश्चन के आंसर देने हो जाएगा, तो वो कहते हैं ओके। इसके अलावा जूरी ने भी कह दिया भाड़ में जाओ, पूरा जो करना है वो कर लो, तब क्या करोगे।
तो मैंने कहा था मैं कहा सर तब आई टेक द लीगल एक्शन। तो लीगल सुन के उनको लगा कोर्ट वाला कुछ, तो उनको थोड़ा सा नेगेटिविटी आई होगी मेरी बातों से कि लीगल ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जाओगे आप। तो मैंने कहा नहीं, देयर इज अ एक्ट इन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एज आई एम द रजिस्टर्ड मेंबर इन आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, सो आई हैव द राइट टू राइट अ मेल and can send to the basically the president or head of the organization. और I will do one more thing, मैं कोशिश करूँगा ये चीज़ें secretly हूँ because I don't want to spread the negativity in my younger batch towards organization. तो ये उनकी प्रोबिंग थी जो कि चली 7-8-12 मिनट। फिर उसके बाद एक फाइनल क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप 14 ईयर की सर्विस के बाद क्या करोगे? तो मैंने कहा फार्मिंग। सर फार्मिंग का तो उन्होंने कहा फार्मिंग क्यों, यू हैव दिस बीआर, यू आर पीजी इन टाउन प्लानिंग, ठीक है, यू हैव दिस गुड स्किल्स और एसएसबी भी कर लोगे, ऑफिसर बन जाओगे, रिटायर हो जाओगे, उसके बाद फार्मिंग करोगे। मगर सर दैट्स माय चॉइस बिकॉज मेरा थोड़ा सा है, मेरी कनेक्टिविटी है उस चीज़ से, मैं वापस जाके फार्मिंग ही करूँगा। तो कहते ठीक है। तो फिर कहते क्या फार्मिंग करोगे? मैंने सर ऑर्गेनिक फार्मिंग करूँगा। कहते क्या होगा? मगर इजरायली मेथड से पंपकिन होगा। तो मैंने यही कहा हूँ। तो कहते ओके। फिर उन्होंने कहा एनी सजेशंस। अब सजेशन का ऐसा था आई केम फ्रॉम आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड, तो मेरा थोड़ा सा है, मैं ऑब्जर्व करता हूँ बिल्डिंग्स को, तो मैं उसी व्यू से देखता हूँ। तो सर मैंने उनको 12 पॉइंटर्स दिए थे। ऑन टिप्स मैंने 12 पॉइंटर्स दिए थे, मगर मैं रिकमेंड होगा हूँ मगर पर बोर्ड सुधर जाएगा। तो लिटरली मैंने उनको 12 पॉइंट दिए थे, इलेक्ट्रिसिटी से लेके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, मैंने उनको एग्जाम्पल के साथ दिए थे। एग्जाम्पल दिया था, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने वाटर हार्वेस्टिंग का जब बोला था कि क्यों जरूरी है। कितनी देर चली? सर मेरी चली 15 मिनट्स। 15 मिनट्स एग्जैक्ट 2 मिनट ऊपर ही होगा तो रिजल्ट डिक्लेयर। सर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। हिज नेम इज